Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and I welcome you all to this wonderful lecture series on Spectrum PYQ sessions. There are total 12 sessions that we are going to take. The most important topics in modern Indian history, we are going to cover them from prelims and mains perspective. तो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हम वो कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में. ये 5th क्लास है. दिस इज़ क्लास नंबर 5. सो फार वी हैव टेकन 4 क्लासेस. ओके, so in this series we are going to study the reformist and revivalist movements that took place in India. The reformist and revivalist movements also added their own sentiment, their own emotion in the overall nationalist movement in India, right? Because if a country is spiritually strong, that means that country will be mentally strong. अगर spiritual strength होती है किसी country में तो वहाँ mental strength overall अपने आप automatically develop हो जाती है. That is why it is said that human beings should not be religiously inclined but spiritually inclined, because spiritual strength means mental strength. Spiritual strength also means emotional strength and physical strength. So let's start this session. Session शुरू करते हैं without any delay. Now before we start this session, here's a small announcement for all of you, a very wonderful announcement by Unacademy. As you can see that Unacademy has launched T20 Daily Current Affairs Test Series for all of you, and these are free test series. ये free test series हैं जो आप लोगों के लिए launch की है Unacademy ने, जैसे कि आप देख भी सकते हो. So these are the current affairs based test series. For example, if you have prepared today's current affairs, now at 7:30 p.m. you can check your preparation by giving the test on these test series, and these are free of cost. There will be 20 questions which will be given to you. 20 minutes time will be given, so total 40 marks, because each question is of 2 marks in prelims, right? So total there will be 40 marks, and daily at 7:30 p.m. now the test will be conducted. And then after the test you will get detailed test analysis also. आपको test analysis sessions भी मिलेंगे. किसके द्वारा? आतिश माथुर and आनंद अग्रवाल sir, they are going to take the test analysis sessions also. Okay, so they will analyze your score, they will give you the briefing of the test, they will give you the solutions and the explanation, and where was your mistake, what were your weak points, everything will be explained in this test series. And the test will be in both language, English and Hindi, and these are free of cost, absolutely free of cost. So what you have to do is go to the App Store, Play Store, download the Unacademy Learning app, or go to the Unacademy's website, register and sign in to the app or website, and go to the test section. After going to the test section, click on the See All button in the test section and enroll in the test series for free. The name is T20 Daily Current Affairs. Okay, and then there will be a white window over here. यहाँ पर आप देख सकते हो ना, this is the white window. This window will appear. It will ask you to put the code, invite code, to unlock all the free classes, all the free tests on Unacademy Learning app. For that you have to type Arpita10. Using this code, any class for free you can watch on Unacademy Plus. कोई भी class free में आप Unacademy Plus पर देख सकते हो इस code को use करके. Any mock test you can give it for free if you use this code. Okay, so do try this code. It's going to be very useful for all of you. Arpita10 is the code. काफ़ी यूजफुल रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, एंड द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डू नॉट मिस दिस टेस्ट. इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन अपना शुरू कर देते हैं. द रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, दीज आर सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन. प्लीज नोट डाउन दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को, इन चारों क्वेश्चंस को प्लीज लिख लीजिए. सेशन के एंड में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. वी हैव टेकन क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs. PYQs के क्वेश्चन को रीमोल्ड करके हमने ये टेस्ट तैयार किया है. सो आफ्टर दिस सेशन एंड्स यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ स्वामी विवेकानंदा's एक्टिविस्ट आइडियोलॉजी. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. Question 3 is list the social evils eradicated by Brahmo Samaj. Eradicated means removed. And question number 4 is what were the major reformist and revivalist movements in 19th century India and how they were different from each other. Discuss with examples, with suitable examples. Okay, so these are the 4 questions which can come from today's class. आज की जो हम क्लास करने वाले हैं इसमें से ये 4 questions आपके easily बन सकते हैं in mains. Okay, so I hope you have noted down these questions. So let's start the class. I hope you have noted down these questions.
सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिफॉर्म मूवमेंट्स, जब हम बात करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स की, ठीक है, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म मीन्स व्हेन यू ब्रिंग आउट सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इन दी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। अभी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उसमें आप कोई चेंज लाते हो, उसको रिफॉर्म कहते हैं। व्हेन यू ब्रिंग अबाउट अ चेंज in something which is already in existence, that is reform, right? For example, some practice is already in existence in the society and you are bringing changes in that practice, that means you are reforming the society. Okay, so basically when we talk about the 19th century period, जब हम बात करते हैं 19वीं सेंचुरी की, in that period the nationalism, emotion of nationalism what was at its peak, ठीक है, नेशनलिज्म जो है वो अपने बिल्कुल चरम सीमा पर था। देश प्रेम की भावना जो थी वो चरम सीमा पर थी। नेशनलिज्म वाज एट द पीक, राइट? एंड टू ऐड टू दिस नेशनलिज्म we also wanted to reform the society, because if society is not reformed then full participation will not be seen in the nationalist movement. अगर society ही reform नहीं हुई है, if there are loopholes in the society, if there is backwardness in the society, then how will we fight for the freedom of our nation? Right? So we needed to reform the society. Now there were many ill practices. For example, the female child infanticide, female children they were killed when they were born. जब बच्चियां पैदा होती थी उनका गला घोट दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था. Females, the girl child was considered as a burden on the parents. Right? This was the ill practice in the society. The girl child was not allowed to attain education. The girl child was married off in a very small age. बहुत छोटी एज पर उनकी शादी हो जाती थी बच्चियों की, राइट? एंड ऑल्सो विडोज दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स. देन देयर वाज सती प्रथा भी थी. So likewise there were many practices, evil practices, which were responsible for the backwardness of the society. And if we wanted to attain independence, if we wanted to rule globally, right, if we wanted to establish our prestige, then we had to remove these loopholes. अगर हमको वर्ल्ड वाइड अपनी प्रेस्टीज की स्थापना करनी है, अगर हमें वर्ल्ड वाइड सबको बताना है कि हम भी इंडिपेंडेंट रूल के काबिल हैं, हम भी स्वराज कर सकते हैं, तो हमें अपने सोसाइटी से कमियों को हटाना था. So for that reform movements were mandatory. So in the 19th century there were two kinds of reform movements which were started. दो तरीके के reform movements हैं जो start किए गए थे. First kind was known as the reformist movement. ठीक है, first kind of movement was known as the reformist movement. Second kind of movement was known as the revivalist movement. Okay, reformist and revivalist. Now the question is, इधर आप देख सकते हो, here we have put up a question that what are the differences between reformist movement and revivalist movement. Reformist और revivalist के बीच में difference क्या होता है? Both are, the purpose is same, to reform the society, to remove the loopholes from the society. Purpose तो same है कि हमें society की backwardness को हटाना है. We have to remove the backwardness of the society. But reformist movements responded, write it down, इसको लिख लीजिए, they responded with the time and scientific temper, with the time and scientific temper of modern era. So reformist movement means, reformist movement का मतलब क्या होता है? जब आप अभी बढ़ते हुए समय के साथ, बदलते हुए समय के साथ लॉजिकली सोसाइटी को बदलने की कोशिश करो. When with the time, ठीक है, with the status of the society, with the state of mind of the people in the society, and with by using logical explanations, you are trying to bring about a change in the society. That means you are checking the current mood or temper of the society, and you are using rational thinking, rational philosophies, logical philosophies to change the society. That is a reformist movement. When you are bringing a change while supporting that, you can say the philosophy, your philosophy or your group's philosophy, by backing them scientifically. आप अपनी ग्रुप की फिलोसफी की मदद से चेंज ला रहे हो सोसाइटी में, बट आपकी ग्रुप की फिलोसफी को आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है, लॉजिकली यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल द सती प्रथा, मान लो सती प्रथा, राइट? राजा राम मोहन रॉय ही वॉज अगेंस्ट दी सती प्रथा. So he did not just shout at people to stop the sati pratha. No, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया. He did not create a mess in the society. He did not shouted at people. He did not beat people to bring about a change. What he did, he supported
his philosophy, his thinking, his speech with scientific explanations. ठीक है, because during that time people used to think that sati pratha, by doing this pratha, the women, the bride also attains heaven, a place in the heaven along with her husband. Once the husband dies, if the bride is sitting on the funeral of her husband, then she also will attain heaven. So आपको ये बताया गया, राजा राम मोहन रॉय, he told people that heaven resides in our heart. ठीक है, heaven is not an illusionary place, any imaginary place. No, it resides in our heart, it resides in our society only. We can create a heaven in the society, we can create a hell in the society. So he used scientific explanation to make people understand that sati pratha is stupid. ठीक है, ये बिल्कुल stupid practice है. अगर आपको स्वर्ग ही भेजना है तो अच्छी समाज को क्रिएट करो, अच्छे समाज की रचना करो, बिकॉज अगर समाज अच्छा नहीं है तो वो जीता जागता नरक है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो ऐसे साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ राजा राम मोहन रॉय लोगों को चेंज कर रहे थे. ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप. राजा राम मोहन रॉय वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप बिकॉज he used to support this fact with scientific explanation, with logical explanation. He used Vedas to explain people that in the Vedas it is clearly mentioned that God resides in every living being. वेद में clearly mentioned है कि भगवान जो है वो हर इंसान में रहता है. ठीक है, हर लिविंग बीइंग, हर एक जानवर में भी भगवान है, हर जगह भगवान है. गॉड इज एवरीवेयर, इट इज रिटन इन वेदास. तो ही सपोर्टेड हिज फिलॉसफी दैट वी शुड नॉट वर्शिप आइडल. ठीक है, बिकॉज गॉड रिसाइड्स इन एवरीवेयर, एवरीवन. सो वी शुड सर्व ह्यूमैनिटी इफ वी वांट टू सर्व गॉड. अगर हमें भगवान की पूजा करनी है तो हमें इंसानियत को सर्व करना है, भूखे को खाना खिलाना है. वी शुड फीड द हंग्री, राइट. एंड इन विंटर्स वी शुड डोनेट द शॉल्स, द ब्लैंकेट्स to the poor people, to the homeless people. That is serving humanity and that is equivalent to serving God. So you need not do the idol worship to serve God because God will not be happy with that. भगवान तो हर जगह है, आप किसी की भी मदद करो वो equivalent होगा भगवान की हेल्प करना, भगवान को वर्शिप करना, भगवान की पूजा करना. He used Vedas to explain people that. So he was using logical thinking to bring about a change in the society. Point clear हो गया सभी को यहाँ पर? Please let me know if the points are clear. Now there was a very ill practice in the society at that time that the widows, they were mishandled by the family. Widows जो होती थी ना, विधवा औरतें जो होती थी, उनको mishandle किया जाता था. They were treated like slaves in the family. Their heads were shaved, उनके सर को मुंडवा दिया जाता था, right? So what he did, he pitched for widow remarriage. इन्होंने कहा कि विडोज की, विधवा की फिर से शादी करवानी चाहिए because they also have the right to start a new life. इनके पास भी हक है कि लाइफ को एक नया रूप दे, नया मोड़ दे. सो हाउ डिड ही यूज साइंटिफिक एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. उन्होंने अपने इस स्पीच को लॉजिकली कैसे बैक किया? ही यूज्ड वेदास. विद हिंदूज ही यूज्ड देयर ओन होली स्क्रिप्चर्स. हिंदूज के साथ उन्हीं की किताब निकाल ली और कहा इट इज मेंशन्ड इन द वेदास दैट दिस नेचर इज फेमिनिन इन कैरेक्टर. जिस नेचर की आप पूजा करते हो ना, जब जिस माँ काली की पूजा करते हो वो औरत है. The Ma Durga, Ma Kali that you are worshipping, she is also a female. And if you are treating the widows badly, that is equivalent to treating the goddess badly. अगर आप एक विधवा को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो, मतलब आप देवी का अपमान कर रहे हो. आपके वेद में लिखा है, it is written in your Vedas, look at it. So he was changing the mindset of people. How? He was changing the mindset of people by using their own scriptures in a very logical manner. ताकि ऐसा ना लगे कि ये कोई बाहर से बात बोल रहा है. सो दैट पीपल विल नॉट थिंक दैट ही इज टॉकिंग रबिश, गिब्रिश. नो, ही इज टॉकिंग व्हाट इज रिटन एग्जैक्टली इन द वेदास. बिकॉज एट दैट टाइम द priest sitting on the high position, they had already manipulated the Vedas for their benefit. They had already misused the Vedas for their benefit. So he was trying to explain the real meaning of Vedas, what is actually written in those holy scriptures, and he was trying to eliminate the ills in the society, evils in the society. Point clear? So this was the reformist movement. Now going on to the revivalist movement. So what are the revivalist movement? Let us understand that. Okay, now these movements, write it down. These movements started reviving the ancient Indian traditions, and thoughts and believed that
the Western thinking ruined the Indian culture and ethics. So basically, revivalist movements were the movements to revive, to again start the practice of ancient Indian traditions and thoughts. फॉर एग्जाम्पल द आर्य समाज मूवमेंट, जब हम आर्य समाज की बात करते हैं वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती. ओके, नाउ बेसिकली द नॉलेज ऑफ योगा, द स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ द एंशियंट वेदास, the knowledge of Upanishads, the knowledge of Purans, Granth, Mahabharata, Ramayana, these knowledge of these holy scriptures, they were getting ruined because of the Western education, because of the Western culture, Western religion. So revivalist movements focused on reviving the knowledge of the ancient scriptures, ancient sages. हमारे जितने भी पौराणिक सेज रहे हैं, साधु संत रहे हैं, उनसे जो हमें नॉलेज मिली थी वो लुप्त होती जा रही थी, गायब होती जा रही थी वेस्टर्न एजुकेशन के वजह से, वेस्टर्न कल्चर के वजह से, जिसको रिवाइव करने की कोशिश की गई 19th सेंचुरी में. पीपल लाइक आर्य समाज, पीपल लाइक दयानंद सरस्वती जी, पीपल लाइक विवेकानंदा जी, परमहंस रामकृष्ण जी, राइट, योगानंदा, परमहंस योगानंदा जी. So all these, युक्तेश्वर गिरी जी, so all these people were involved in the movement to revive. Yes, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, then Aurobindo Ghosh ji, right, all these people, they were trying to revive the ancient Hindu tradition, ancient Indian culture, ठीक है, which was now getting vanished, getting ruined because of the influence of Western church, Western culture, Western dressing, Western thinking, Western education. Point clear? So now the basic point is clear. What is reformist, what is revivalist? When you change the ill practices in the society using logical reasoning. Okay, what is revivalist? When you are reviving a dead part of the society, a dead tradition, a dead culture, एक कल्चर, एक ट्रेडिशन जो कि लुप्त हो गया है, खो गया है, उसको जब आप वापस जिंदा करते हो, वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है. पॉइंट क्लियर? क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स एंड डिफरेंट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. ओके, क्लियर? लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. फर्स्ट वी हैव द ब्रह्मो समाज. पहला हमारे पास आ जाता है ब्रह्मो समाज. वेन वी टॉक अबाउट ब्रह्मो समाज, इट इज अ काइंड ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट. ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का एग्जाम्पल है, प्लीज राइट इट डाउन. सो ब्रह्मो समाज इज द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट. ऑलवेज रिमेंबर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या है, रिवाइवलिस्ट क्या है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है. सो वेन वी टॉक अबाउट ब्रह्मो समाज, दिस ब्रह्मो समाज वॉज स्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय. ठीक है. एंड राजा टाइटल वॉज गिवन टू हिम बाय द मुगल रूलर अकबर टू. ठीक है. अकबर टू जो थे उन्होंने राजा टाइटल दिया था. तो दिस वॉज नॉट नेम, दिस वॉज अ टाइटल. राजा वॉज अ टाइटल. सो राजा राम मोहन रॉय, राइट इट डाउन, इसको प्लीज लिख लीजिए. ही स्टैब्लिश्ड दिस एसोसिएशन, दिस समाज, इसको स्टैब्लिश किया गया. एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड वेयर इन कैलकटा. कैलकटा में इसको स्टैब्लिश किया गया था. इन विच ईयर? इन द ईयर 1828. ओके. Now why this organization was established? What was the aim of this organization? The aim was to purify Hinduism, and to preach monotheism. यानी कि ईश्वर एक ही है, God is one. You need to identify it. Okay. So now over here you will see, आप इधर देख सकते हो that राजा राम मोहन रॉय, he established the Brahmo Samaj in Calcutta in the year 1828, and the aim was to purify Hinduism because he was reforming Hinduism. So he was trying to purify Hinduism using what? Using their own scriptures, that is the Vedas, that is the Gita. ठीक है. हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने का ये और मौका था राजा राम मोहन रॉय के पास. तो हमारी ही स्क्रिप्चर्स यूज करके हमें प्योरीफाई करने की कोशिश की जा रही थी, बिकॉज वी वर इम्प्योरीफाइड. वाई वी वर बिकमिंग इम्प्योर? वाई? बिकॉज ऑफ द सती प्रथा, बिकॉज ऑफ द traditions that a girl child will be killed when she is born, or she will always be restricted to the kitchen, she will not get education, etc, etc. These were the ills which were practiced in our culture. Okay, so he wanted to purify Hinduism. That is why he established this Brahmo Samaj. Now the Samaj under him, under his ruling period, this Samaj was based on twin pillars. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो that Brahmo Samaj, it stood on twin pillars.
इसके दो स्तंभ थे जिनके ऊपर ये खड़ा था. देयर वर टू पिलर्स, टू एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट वाज रीजन, पहला एलिमेंट था रीजन, ठीक है. एंड द सेकंड एलिमेंट वाज हिंदू स्क्रिप्चर्स, ये था आपका सेकंड एलिमेंट. यूजिंग दीज टू पिलर्स, दीज टू एलिमेंट्स, ही ट्राइड टू प्योरीफाई हिंदुइज्म. इन दोनों एलिमेंट्स को यूज करके इन्होंने हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने की कोशिश की. यूजिंग रीजन, दैट मीन्स द लॉजिकल रीजन, एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स, दैट इज द वेदास, गीता, उपनिषद, पुराण एटसेट्रा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो यहाँ पर याद रखना है दैट ही यूज्ड ओनली वेदास एंड उपनिषद्स. इन्होंने उपनिषद्स और वेद का यूज किया टू प्योरीफाई हिंदुइज्म. Point is clear? We cannot say that he was limited to Hinduism only. No, because he used other religions also to prove that God is one, to prove that we should not discriminate among people based on the different gods that they are worshipping. In Hinduism, we have Vaishnavites also, we have Shaivites also, we have Shaktas also. Shaktas, they worship Lord Durga, goddess Durga. ठीक है, Vaishnavites, they worship Lord Vishnu, and Shaivites, they worship Lord Shiva. Because of which they used to fight amongst themselves. The Vaishnavites used to say that we are superior. The Shaivites used to say we are superior. The Shaktas used to say we are superior. They were fighting in between amongst themselves, right? So he used Vedas and Upanishads and other religions also. For example, Christianity. For example, Islam. He used other religions also to prove that God is one. हर रिलीजन में, हर ग्रंथ में ये बात कही गई है कि भगवान एक ही है. दीज आर डिफरेंट प्रोजेक्शंस ऑफ गॉड दैट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड. इंसानों ने अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट कर लिए हैं भगवान के, है तो वो एक ही. देयर इज वन सिंगल सोर्स ओनली फ्रॉम वेयर एवरीथिंग कम्स, एवरीथिंग ओरिजिनेट्स. सो ही यूज्ड वेदास, उपनिषद्स एंड अदर रिलीजन्स ऑल्सो टू प्रूव हिज पॉइंट. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. एंड ही वॉज ऑल्सो सेंट, राइट इट डाउन, ही वॉज ऑल्सो सेंट टू इंग्लैंड. इनको इंग्लैंड भी भेजा गया था बाय अकबर टू. किसने भेजा था? जिन्होंने इनको टाइटल दिया था. अकबर टू गेव हिम द टाइटल राजा. ही ऑल्सो सेंट हिम टू इंग्लैंड टू प्लीड टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर लार्ज सम ऑफ पेंशन, बिकॉज ही वॉज अ वेरी नाइस ओरेटर. बहुत ही बढ़िया ओरेटर थे, एंड ही वॉज अ वंडरफुल कम्युनिकेटर ऑल्सो. सो ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू द क्वीन फ्रॉम बाय अकबर टू प्लीड फॉर हायर अमाउंट ऑफ पेंशन. यानी कि उस वक्त मुगल रूलर्स को पेंशन मिल रहा था ना क्वीन से. Mughal rulers were receiving pension from the British government. So he was sent because he could talk, he could convince people nicely. इसलिए इनको भेजा गया कि जाकर हमारे लिए बात करके आओ, हमारी पेंशन बढ़ाई जाए. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. Now what were his religious ideas? This can be asked in prelims also and mains also. राजा राम मोहन रॉय के रिलीजियस आइडियाज क्या थे, ये समझ लेते हैं. ठीक है, what were his religious ideas? So let us understand the religious ideas and the religious reforms done by Raja Ram Mohan Roy. So first point is that he studied, write it down, इस point को लिख लो. So you can see that he studied different languages. Why? In order to make people understand the essence of different religious scriptures. जितने religious scriptures, जितनी religious किताबें ये पढ़ रहे थे, उनका essence समझाने के लिए अलग अलग language पढ़ी इन्होंने. ठीक है, and to study their scriptures he had to know their languages also. ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट ही बिलीव्ड इन मोनोथीज्म. इन्होंने मोनोथीज्म पे बिलीव किया. ठीक है, ही बिलीव्ड इन मोनोथीज्म. नाउ दे कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स व्हाट इज मोनोथीज्म. आपसे पूछ सकते हैं मोनोथीज्म क्या है. सो इट इज, राइट इट डाउन, इट इज द डॉक्ट्रीन ऑफ यूनिटी ऑफ गॉड हेड. ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ यूनिटी ऑफ गॉड हेड मीन्स दैट गॉड इज वन. यूनिटी यानी कि जितने भी भगवान आप पढ़ रहे हो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जितने भी भगवान आप पढ़ रहे हो, ये सब एक ही हैं. ऑल ऑफ देम आर वन ओनली, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, एंड ही ऑल्सो ओपोज्ड आइडल वर्शिप. मूर्ति पूजा इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी. ठीक है, ही सेड दैट गॉड कैन बी फाउंड एनीवेयर, एवरीवेयर. ही इज ऑल्सो इन यू, इन योर सोल. So you need not worship a particular idol to worship God. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. What is Hebrew? हिमांशु, यहाँ क्या लिखा हुआ है? This is language. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Let's move forward. Now comes the time period of 1803. In this period he published, write it down, he published Persian book. He published a Persian book. एंड इस पर्शियन बुक का नाम क्या था? द नेम ऑफ द पर्शियन बुक वॉज, राइट इट डाउन, इट वॉज तुफत
दिस इज TUHFAT, तुफ़त उल मुवाहिद्दीन। इस किताब का नाम था तुफ़त उल मुवाहिद्दीन, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस बुक? इस नाम का मतलब क्या है? दिस नेम मीन्स अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ठीक है, जो कि एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके लिए एक तोहफा। द पीपल हु बिलीव इन वन गॉड, दे आर मोनोथीस्ट, इट्स अ गिफ्ट टू देम। तुफ़त उल मुवाहिद्दीन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दे कैन आस्क यू द ईयर और द ऑथर ऑफ द बुक तुफ़त उल मुवाहिद्दीन, ठीक है, पॉइंट क्लियर। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीज्म। इस किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट अबाउट हिम इज, सेकंड पॉइंट है इसका, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ही एस्टैब्लिश्ड, इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया? ही एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा, इन्होंने आत्मीय सभा भी एस्टैब्लिश किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, अ लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस हैव कम ऑन आत्मीय सभा। And in which year it was established? In 1815 it was established. Where it was established? In Calcutta. कहाँ पर establish किया गया? Calcutta में establish किया गया। Now आत्मीय is related to soul, आत्मा, आत्मीय soul से related है, आत्मा से related है। Here also he propagated monotheism, यहाँ पर भी इन्होंने monotheism की ही बात की। Here also he tried to spread his teachings on monotheism, and also through this sabha, through this organization, he fought against, write it down, he fought against the evil customs, इन्होंने evil customs के against जंग लड़ी, and practices in Hinduism, whatever evil customs, practices were prevalent in Hinduism that we discussed in the starting of the class, he fought against them through the Atmiya Sabha. Point clear? Now later on in the year 1828 he established another organization. इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज, ठीक है, इसका नाम था ब्रह्मो समाज, एंड इट वाज अगेन स्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। नाउ ब्रह्मो समाज वो रीनेम्ड, इट वाज रीनेम्ड, इसका नाम बदला गया, एंड व्हाट वाज इट्स न्यू नेम? इट वाज ब्रह्म सभा, ठीक है, जो नया नाम था इसका वो था ब्रह्म सभा। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक? सो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट gods, different forms of gods, and used to say that all of them are one. तो ये तो हो गया इनके practices जो इन्होंने किए। These are the religious ideas that he practiced, that he worshipped, ठीक है। अब बात आती है what were the reforms that he brought, कौन कौन से reforms थे जो ये सोसाइटी में लेकर आए। So the first reform is that he sided with, write it down, he sided with Lord William Bentinck, इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद ली। ही टुक द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट दी सती प्रथा, सती प्रथा के अगेंस्ट इन्होंने हेल्प ली विलियम बेंटिक से, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज आल्सो अगेंस्ट दी सती प्रथा, ठीक है। सो ही परसुएडेड लॉर्ड विलियम बेंटिक टू अबॉलिश सती प्रथा, एंड ही आल्सो चैंपियनड, राइट इट डाउन, ही आल्सो चैंपियनड विमेन्स राइट, यानी कि इन्होंने विमेन्स राइट के लिए भी काम किया। ही आल्सो वर्कड to uplift the status of women. He also worked for giving them the right of inheritance of property. Write it down. इन्होंने ये भी कहा कि माता पिता के विल में, प्रॉपर्टी में अगर बेटे का हिस्सा है तो बेटी का भी हिस्सा होना चाहिए। If the son is getting the will of the father or mother, the girl child should also have equal right. So right of inheritance of property, because she is also a child, right? वो भी तो बेटी है, she is also the kid of the child of the parents. So right of inheritance of property, this should be given to the women also. And he fought for the introduction of, write it down, this is important, he fought for the introduction of the spread of modern education, through English. तो इनको इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आप मॉडर्न एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, ये इनको पसंद नहीं था। ही डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट इंग्लिश इज बिकमिंग डोमिनेंट इन इंडिया, द लैंग्वेज इंग्लिश इज बिकमिंग डोमिनेंट इन इंडिया एंड अदर लैंग्वेजेस आर बीइंग साइडलाइंड, बाकी सारी लैंग्वेजेस को आप साइडलाइन कर रहे हो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ही फॉट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थ्रू द लैंग्वेज इंग्लिश, बिकॉज इट मेंट दैट यू आर हार्मिंग, यू आर not prioritizing or insulting the other languages in India. Point clear हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ. नाउ व्हेन राजा राम मोहन रॉय डाइड, जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई, व्हाट हैपेंड टू ब्रह्मो समाज, फिर ब्रह्मो समाज का क्या हुआ? सो राइट इट डाउन, ये भी लिख लो फटाफट से. द ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय, आफ्टर राजा राम मोहन रॉय. So first leader of the Brahmo Samaj after Raja Ram Mohan Roy was Debendranath Tagore. First was Debendranath Tagore. He was the first leader of Brahmo Samaj after Raja Ram Mohan Roy. Time period 1817 to 1905. ठीक है. Now when he was leading the Brahmo Samaj, he also established, इन्होंने एक और आप बोल सकते हो organization established की. Basically he destroyed the essence of Brahmo Samaj. Why? Because he established another organization. So the aims and objectives of Brahmo Samaj and the other organization that he established, it got mixed and matched. ठीक है, हुआ क्या? मिक्स एंड मैच हो गया, पूरा खिचड़ी बन गई ब्रह्मो समाज के ऑब्जेक्टिव्स की और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की. द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन दैट ही established what was, write it down, it was तत्व बोधिनी Sabha. This was the second organization that he established in the year 1839 in Calcutta. This is again important for prelims because they will give you the name of the Sabhas and Samaj and the founder's name. Then they will ask you to match the correct pair. ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, नाम दे देंगे ऑर्गेनाइजर्स का और ऑर्गेनाइजेशन का, आपसे बोलेंगे मैच करो. ठीक है. सो तत्व बोधिनी सभा फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन कैलकाटा इन 1839. नाउ he did not just get attached to Brahmo Samaj. To spread the ideas of Raja Ram Mohan Roy, he also established another organization. So तत्व बोधिनी सभा के द्वारा भी सेम काम हो रहा था, राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को एस्टैब्लिश किया जा रहा था और ब्रह्म समाज में भी सेम काम हो रहा था. ठीक है. नाउ ही फॉर्मली ज्वाइंड ब्रह्मो समाज, राइट इट डाउन, he formally joined Brahmo Samaj in the year 1843 and reorganized it. बाद में अपने तत्व बोधिनी सभा को स्टैब्लिश करने के बाद इन्होंने फिर से ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया और उसको रीऑर्गेनाइज किया. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो देवेंद्रनाथ टैगोर इज क्रेडिटेड टू रीऑर्गेनाइज ब्रह्मो समाज आफ्टर ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. एंड ही ऑल्सो प्रमोटेड, राइट इट डाउन, ही ऑल्सो प्रमोटेड सिस्टमैटिक स्टडी, he also promoted systematic study of India's past. This is very important line, I have taken this from UPSC's previous year questions. ठीक है, तो promoted systematic study of India's past through his own establishment which was named as तत्व बोधिनी सभा. ठीक है, और इसी सभा का एक मैगजीन है जो पब्लिश हुआ करता था. There was a magazine or you can say a journal which was published by Tattva Bodhini Sabha and it was named as Tattva Bodhini Patrika. उसका नाम था Tattva Bodhini Patrika. It was a kind of magazine which was published by Tattva Bodhini Sabha. ठीक है, it was a Bengali monthly magazine. हर महीने एक मैगजीन लॉन्च होती थी तत्व बोधिनी सभा के द्वारा which was known as Tattva Bodhini Patrika. It was in Bengali language. ठीक है, point clear. And he remained the leader of Brahmo Samaj till the year 1866. 1843 he formally joined Brahmo Samaj and remained the leader till 1866. ठीक है, point clear हो गया. There was another member of Brahmo Samaj. ब्रह्मो समाज के एक और मेंबर हुआ करते थे. He was known as केशव चंद्र सेन, right? केशव चंद्र सेन. He was another member of Brahmo Samaj. 1838 to 34 he remained the member of Brahmo Samaj. ठीक है, 38 से 34 तक ये मेंबर रहे ब्रह्मो समाज के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So he joined Brahmo Samaj, write it down, he joined Brahmo Samaj in the year 1857. 1857 में इन्होंने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज. ठीक है, एंड दैट वॉज फॉर्मली, उससे पहले इनफॉर्मली ही वॉज वर्किंग विद इट. ठीक है, फॉर्मली he got associated, similar to Debendranath Tagore. He also formally joined Brahmo Samaj in 1843. He was associated with Brahmo Samaj, but formally in public he came out and joined Brahmo Samaj. And similarly Keshav Chandra Sen also, he was working with Brahmo Samaj but not formally, indirectly. But then directly whole time इन्होंने formally join किया ब्रह्मो समाज को 1857 में. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को. ये 1884 है यहाँ पर. ठीक है, टाइम पीरियड इनका. ठीक है, 1838 to 1884. So he became, write it down, he became the right hand man. He became the right hand man. यहाँ तक सभी को विजिबल है ना स्लाइड? एवरीबडी कैन व्यू द स्लाइड. ओके,
ही बिकेम द राइट हैंड मैन ऑफ देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ के ये राइट हैंड मैन हो गए, यानी कि वेरी क्लोज टू देवेंद्र नाथ, ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू देवेंद्र नाथ, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड with time, slowly after few years he started developing differences with Debendranath Tagore, ठीक है। कुछ issues थे, particularly the caste system on which he had different views as compared to Debendranath Tagore, ठीक है। तो इनका जो रिलेशनशिप है केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ का, आफ्टर 3-4 years द रिलेशनशिप वॉज गेटिंग बिटर, नॉट वेरी बिटर येस, बट दैट यू कैन से येस फिलोसफिकली दे वर पार्टिंग वेज विद ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो रहे थे फिलोसफिकली, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट केशव चंद्र सेन, जब हम केशव चंद्र सेन की बात करते हैं, ही स्टूड फॉर कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? केशव चंद्र सेन he stood up for the complete abolition of caste system. He said caste system should be completely abolished. caste system को पूरी तरीके से abolish कर देना चाहिए, ठीक है। But Debendranath Tagore said that no, if we completely abolish caste system, then it can create a turmoil in the society. पूरी सोसाइटी में टर्मोइल हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगी, ठीक है। राइट नाउ पीपल आर नॉट रेडी फॉर कंप्लीट अबॉलिशमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम, सो दैट इज वाई बोथ ऑफ देम डिफर्ड इन देयर व्यूज, इसलिए दोनों ना एक दूसरे के व्यूज से डिफर करते थे। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इन डिटेल ऑल द इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। ब्रह्मो समाज हमने पढ़ लिया, कमिंग ऑन टू आर्य समाज। अब बात करते हैं आर्य समाज की। So when we talk about आर्य समाज, it is not a reformist movement. आर्य समाज reformist movement नहीं है, it is a revivalist movement. It was started by स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, in 1875 where in Bombay. तो आपको याद क्या रखना है? What you have to remember is when it was established, where it was established and by whom it was established. कब establish हुआ, कहाँ establish हुआ और किसके द्वारा हुआ, ठीक है। So now आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी used to say that idol worship is not करेक्ट, ठीक है, बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है, गॉड तो हर जगह है। सो यू कैन नॉट जस्ट सी गॉड ओनली इन एन आइडल, एक आइडल में ही देखो ये गलत है, ठीक है। एंड ही वॉज अगेंस्ट एनिमल सैक्रिफाइस, किलिंग ऑफ द एनिमल्स, ही वॉज अगेंस्ट प्रीस्टहुड बिकॉज द प्रीस्ट दे वर मिस यूजिंग द इमोशंस ऑफ पीपल एट दैट टाइम। 19th सेंचुरी में जो पंडित थे वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे थे। रिचुअल्स दे बाइंड यू, रिचुअल्स आपको बांध देते हैं। If you are very ritualistic person na, so you will not step away from your rituals or every other thing you will deprioritize them. बाकी और चीज़ों को, बाकी कल्चर को, ट्रेडिशन को, रिचुअल्स को आप कम समझोगे, अपने रिचुअल को ज़्यादा मानोगे। दैट इज वाई रिचुअलिस्टिक वर्शिप इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, बाय द वेदास ऑल्सो। सो ही ऑल्सो सेड दैट आई एम अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। इट ऑल्सो इंकरेजेस द डिसेमिनेशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय लॉजिक, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू थियोसॉफिकल सोसाइटी। जब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, दिस सोसाइटी वाज नॉट अ रिफॉर्मिस्ट सोसाइटी, इट वाज अ रिवाइवलिस्ट सोसाइटी। ये सोसाइटी भी रिवाइवलिस्ट सोसाइटी थी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट जे कृष्णमूर्ति? आप में से कितने बच्चों ने जे कृष्णमूर्ति का नाम सुना है? एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट जिद्दू कृष्णमूर्ति, राइट? हिज टीचिंग्स आर वेरी फेमस, इनकी टीचिंग्स काफ़ी फेमस है, प्लस टू द पॉइंट टीचिंग। आप किसी भी प्रॉब्लम हो, इनकी टीचिंग से आप बाहर निकल सकते हो। इफ यू आर इन एनी प्रॉब्लम, एनी मेंटल इशू, यू कैन जस्ट कम आउट ऑफ इट इन अ स्नैप बाय स्टडिंग कृष्णमूर्ति's टीचिंग्स, हिज फिलोसफीज। सो थियोसॉफिकल सोसाइटी इट वॉज स्टैब्लिश्ड, वैसे तो मैडम ब्लाविट्स्की ने इसको स्टैब्लिश किया था, एक्चुअली इट वॉज फॉर्म्ड बाय मैडम ब्लाविट्स्की एंड कोलोनल ओलकट, ठीक है, इन न्यूयॉर्क। बट इन इंडिया द फाउंडेशन वॉज लेड बाय एनी बेसेंट। इंडिया में किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया? इन इंडिया हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सोसाइटी? एनी बेसेंट, ठीक है। सो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन प्रीलिम्स इफ द क्वेश्चन कम्स हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, इट इज मैडम ब्लाविट्स्की एंड कोलोनल ओलकट, नॉट एनी बेसेंट। बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं, यूपीएससी ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड ऑल्सो। इट वॉज मैडम ब्लाविट्स्की एंड कोलोनल ओलकट। एनी बेसेंट, शी वॉज द मैनेजर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। इंडिया में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उनके जो मैनेजमेंट का काम था वो एनी बेसेंट का था, शी वॉज नॉट द फाउंडर। एंड दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी टॉक्ड अबाउट द एंशिएंट स्टडीज ऑफ द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको?
एंड दिस सोसाइटी डील्स विद द मिस्टिकल टीचिंग्स. ये जो सोसाइटी है वो मिस्टिकल सोसाइटी है. जो हमारे तंत्र विद्या होती है ना, ओकल्ट होती है, द ओकल्ट, दिस सोसाइटी यूज टू डील विद द ओकल्ट, नॉलेज ऑफ ओकल्ट. ठीक है, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, चक्रास बोलते हैं बॉडी में, राइट. ये सारे चक्रास, 7 सेंटर पॉइंट्स, ठीक है, वी कैन रिवाइव देम, एक्टिवेट देम. सो दीज वर द टॉपिक्स ऑन विच दे यूज टू डिस्कस. इन टॉपिक्स पर डिस्कस करते थे. एंड जे कृष्णमूर्ति वॉज अडॉप्टेड बाय मैडम ब्लावट्स्की to she projected J. Krishnamurti as the new world leader, but later on when J. Krishnamurti grew up, he understood that you cannot just create a world leader and everybody will follow him. No, that is wrong. If you want to know the truth, who created the universe, what is this happening around us, why we should not be attached to people. If you want to know the truth behind it, you need to you have to build your own path for that. आपको आपका खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा अगर सच्चाई तक पहुंचना है. दिस वॉज द टीचिंग ऑफ जे कृष्णमूर्ति. ठीक है, सो ही लेफ्ट द थियोसोफिकल सोसाइटी वंस ही ग्रू अप. जैसे ही बड़े हुए उनको ये ओकल्ट मिस्टिकल टीचिंग्स इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था. ही सेड एवरीबडी हैज टू फाइंड हिज ओन पाथ, आई कैन नॉट बी द गुरु ऑफ समबडी. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. चलो, नेक्स्ट इज रामकृष्ण मिशन. एवरीबडी नोज अबाउट रामकृष्ण मिशन. आप सभी बच्चे जानते हो रामकृष्ण मिशन के बारे में. ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है रामकृष्ण मिशन की. इन दिल्ली ऑल्सो देर आर सर्टन सेंटर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन एंड दे यूज टू कंडक्ट डिबेट्स, oratory, speeches, etc. And from class 6th till class 10th, I used to participate in all the Ramakrishna Mission competition and I used to get first prize in that. ठीक है, हर रामकृष्ण मिशन के स्पीच कॉम्पिटिशन में, डिबेट कॉम्पिटिशन में आई यूज टू पार्टिसिपेट फ्रॉम 6th to 10th and I used to get first prize because that is my fond memory of Ramakrishna Mission. Now if you join the Ramakrishna Mission now, they will teach you about Vedant. आपको वेदांत की नॉलेज देंगे. ठीक है, they used to teach us Vedant, the knowledge of Vedant, how you do not seek motivation outside. आपको बाहर मोटिवेशन नहीं ढूंढना है. Your soul is spiritually motivated 24/7 but you do not realize it. आप लोगों को realization नहीं होती है क्योंकि materialistic चीजें इतनी होती है ना. ठीक है, यू डोंट हैव टू सीक मोटिवेशन आउटसाइड. ये यूट्यूब पे आजकल वीडियोज आ जाती है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल देते हैं, स्कैम 1992 का बैकग्राउंड म्यूजिक. ठीक है, उसको सुनकर मोटिवेशन ले रहे हैं लोग. 19-20 साल के बच्चे बात कर रहे हैं कि सट्टे बाजार में हम जाएंगे स्कैम 1992 देखकर. ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर वेस्ट. दे विल क्रिएट टेम्पररी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इन योर ब्रेन टू चीट योर ब्रेन एंड देन आफ्टर फ्यू आवर्स अगेन यू विल बी डीमोटिवेटेड. सो मोटिवेशन रिसाइड्स इन आवर ओन हार्ट. ठीक है, हमारे खुद के अंदर सोल में मोटिवेशन है. दीज वर द टीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण मिशन. इफ यू हैव जॉइंड रामकृष्ण मिशन सिंस यू आर अ चाइल्ड, देन आई कैन गारंटी दैट इन एवरी सिचुएशन यू कैन कम आउट. ठीक है, हर सिचुएशन से अगर आपने रामकृष्ण मिशन को ज्वाइन किया हुआ है ना, या आपने इनकी टीचिंग्स पढ़ी है, इफ यू हैव स्टडीड द टीचिंग्स ऑफ विवेकानंदा जी, देन आई कैन गारंटी यू नोबडी कैन डीमोटिवेट यू एवर इन योर लाइफ, नॉट इवन योर ओन ब्रेन. ठीक है, आपका खुद का माइंड भी आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता. In every situation you will sail through very easily. So that is why it is said that children from class 6th only, class 5th only, they should participate in Ramakrishna Mission. This mission was founded by Swami Vivekananda in 1892 in Calcutta. ठीक है, why? To promote the teachings of his guru Ramakrishna Paramahans. He opposed the caste system and untouchability and focused on universality of all religions. That means every religion is one only. हर रिलीजन एक ही है. एंड ही प्रीच्ड द मैसेज ऑफ वेदांता. इफ यू हैव जॉइंड माई हिस्ट्री लेक्चर्स इन ऑन अनअकैडमी प्लस, वी हैव डिस्कस्ड वेदांता ओवर देयर. हमने डिटेल में वेदांत में आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स में प्लस पर. ठीक है, सो ओवर हियर आफ्टर रामकृष्ण मिशन वी हैव सत्य शोधक समाज. नाउ सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिराव गोविंदराव फूले in 1873 in Maharashtra and he campaigned against idolatry and caste system. इन्होंने हमेशा idolatry के against काम किया. He used to say that we need to find the truth. Truth is not in idols. मूर्तियों में सच्चाई नहीं मिलेगी आपको. You need to be a truth seeker and you will not find truth in temples or in idols. मूर्तियों में सच्चाई नहीं मिलेगी. You will be hallucinated by the idols. If you want to search for the truth, go within. ठीक है, अपने ही अंदर झांकना है अगर सच्चाई को ढूंढना है. एंड कास्ट सिस्टम इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच वॉज डन बाय पीपल राइट वर्ल्ड वाइड. कास्ट सिस्टम इज द बिगेस्ट होक्स.
आप बोल सकते हो कास्ट सिस्टम से ज़्यादा बुरा इस दुनिया में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज एवरी बैड थिंग स्टार्टेड फ्रॉम द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ओनली। पहला जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ कास्ट का, वहीं से सारी बुराइयां निकली हैं। ज्योतिराव फुले is said to have used the term Dalit for the oppressed classes. Dalit means the being of God, the son of God, ठीक है, the spiritual being. Now the next important topic, next important movement is Young Bengal movement. Now इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है? What question they can ask you in the Young Bengal movement? The question can be, what was the Young Bengal movement and what were its objectives? यंग बंगाल मूवमेंट क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो नाउ हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे आप? फर्स्ट यू विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज यंग बंगाल मूवमेंट, देन यू विल राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट्स एम्स, ठीक है। उसके बाद आप इससे रिलेटेड जो भी क्रिटिसिजम्स भी आए हैं उनको भी मेंशन करेंगे एंड देन यू विल कंक्लूड। सो यंग बंगाल मूवमेंट, वाज इट अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट? इट इज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट नहीं, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है ये, ठीक है। वेरी वेरी गुड। सो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इन कैलकाटा in the 1820s, and Derozio was an Anglo-Indian college teacher in Calcutta. He encouraged radical thinking. Radical means logical thinking. Do not just blindly follow everything. आंखें बंद करके पट्टी बांध के नहीं फॉलो करना है सब कुछ, किसी ने कुछ कह दिया मान लिया, नहीं। यूज योर लॉजिक्स, यूज योर माइंड, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस, बी लॉजिकल। ऐसे ही नहीं बोल दिया यहाँ से यहाँ अवतार हुआ है, वहां से वो अवतार हुआ और मान लिया, नहीं। अपने लॉजिक को यूज करो, किसी के कहने पर मत आओ। एंड ही क्रिटिसाइज्ड द प्रिवेलिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ही इंस्पायर्ड फ्री थिंकिंग, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी that he also inspired free thinking and propagated use of spirit of liberty, equality, freedom. That means if there is liberty, equality, freedom in the society among the youth of the country, in that case the ill practices of the society will be vanquished. अगर एक सोसाइटी में लिबर्टी है, फ्रीडम है, राइट्स हैं आपको ओपनली सोचने के, अपने ख्याल सामने रखने के, राइट, अगर आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, आप फ्री हो, तो इस केस में आपको कोई बांध नहीं रहा, तो उस केस में सोसाइटी में किसी भी तरीके की इविल प्रैक्टिस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। नो काइंड ऑफ इविल प्रैक्टिस कैन एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी इफ वी हैव लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। एवरी बैड थिंग हैपेंस इन द सोसाइटी ओनली व्हेन देयर इज नो इक्वालिटी, व्हेन देयर इज नो फ्रीडम। सोसाइटी में गलत तभी होता है जब इक्वालिटी नहीं होती, फ्रीडम नहीं होता। पॉइंट समझ आ रहा है सभी को? सो ही बीइंग अ टीचर encouraged his student to think radically and to follow the principles of equality, liberty and fraternity and freedom, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर? नाउ एनालाइज करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेरोजियो, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, वेयरइन ही क्लब टुगेदर ऑल द यूथ ऑफ द बंगाल। नाउ आफ्टर ही डाइड, जब इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद देयर वाज नो लीडर। ऑल द पीपल, ऑल द फॉलोअर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर यूथ, यंग स्टूडेंट्स, 18, 19, 14 ईयर की एज थी उनकी, ठीक है। 14-15 साल के बच्चे थे, 19 साल के बच्चे थे। सो देयर वाज लैक ऑफ लीडरशिप की कमी थी, बिकॉज ऑफ विच दिस मूवमेंट वेंट डाउन। इसलिए ये मूवमेंट ज्यादा टाइम चला नहीं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एंड एट दैट टाइम रेडिकलिज्म वाज नॉट एक्सेप्टेबल। उस टाइम पर कोई लॉजिकल बात करता था ना, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। पीपल यूज टू हश अवे द रेडिकल्स, ठीक है, जो साइंटिफिक लॉजिक यूज कर रहा है हर बात में। तो दैट इज वाई this movement could not move on for a longer period of time. Then we have over here the Aligarh movement. Aligarh movement again was a reformist movement. Always remember, any spiritual movement will be a revivalist movement. कोई भी spiritual movement होगा ना, वो revivalist movement होगा. For example, Ramakrishna Mission was a revivalist movement. It revived the knowledge of Vedant. ठीक है, point clear हो गया? And this Aligarh movement is a reformist movement. ठीक है. So Aligarh movement, the movement was started by Sir Syed Ahmad Khan in 1860s in Aligarh. That is why it is known as Aligarh movement. Aligarh is in UP, and he focused on spreading Western scientific education among the Muslim masses. Now his movement was a narrow movement. Why? Because it was only dedicated for the Muslim masses. इनका जो movement था वो एक community को ही target कर रहा था बस. And he also joined the Widow Remarriage Association. ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया, नॉट जॉइंट बट येस ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन. दैट वाज द वन, यू कैन से एक्सपेंशनिस्ट मूव फ्रॉम द
Sir Syed Ahmad Khan, from the side of Sir Syed Ahmad Khan, but then later on he was just focused on his community's upliftment only. ये अपने कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट की ही बात ज्यादा करते थे. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ पर? So Widow Remarriage Association, it was formed by Vishnu Shastri Pandit and Mahadev Govind Ranade in 1861, and it promoted widow remarriage and campaigned against the child marriages. So again यहाँ पर क्या होता था, शादियों पे जो इतना खर्चा होता था, डाउरी दी जाती थी, या एक विडो के सर को शेव कर दिया जाता था, मुंडवा दिया जाता था, इस सब टॉपिक्स के अगेंस्ट विष्णु शास्त्री पंडित एंड महादेव गोविंद रानडे, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट अगेंस्ट दीज टॉपिक्स. ठीक है, दे वर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल अगेंस्ट दीज इश्यूज. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? सो दीज वर द वेरियस काइंड ऑफ रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. ये थे अलग अलग तरीके के रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स. फिर हम कंटिन्यू करेंगे अभी कल की क्लास में, जो कि सुबह है 9 बजे. द नेक्स्ट क्लास वी हैव एट 9 AM. Also do not forget to subscribe to Unacademy Plus. Batches are starting from 28th of December. I am taking history courses and you can use this code Sharma20 to get 10% discount also. And also join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class PDF. क्लास PDF के लिए Simplifying UPSC with Ease ज्वाइन कर लेना चैनल. ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास. नाउ लेट्स मीट टुमारो एट 9 AM. ठीक है, चलो कल मिलते हैं 9 बजे. बाय.